Hello friends, welcome to Abhipedia. My name is Manish and in this video series I am going to continue with where we left off the last time. We are continuing with the discussion of multiple choice questions और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट हैं. And before starting, let me tell you of the amazing results that Abhipedia students have brought in CAPF Assistant Commandant exam. So all these are the toppers of Abhipedia from last year. More than 25 selections we have had in CAPF Assistant Commandant exam. और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उन्हें 7 दिन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं. फॉर 7 days you can attend without paying anything, and if you like it, only then you have the option to continue. So you register yourself at abhipedia.abhimanyu.com and you can attend our classes. Let's get started with the first question of geography. Which of the following makes the northern boundary of Deccan Plateau? Deccan Plateau is a geographical feature of Indian subcontinent. तो इसके नॉर्दर्न बाउंड्री इनमें से कौन सा फीचर बनाता है? इज इट अरावली रेंज, विंध्या रेंज, छोटा नागपुर प्लेटू और none of these? Now this is a typical question where you require a good knowledge of India's physical map. So let's take a look at India's physical map. So Deccan Plateau जो है, it is this area. This is your Deccan Plateau. तो Deccan Plateau की northern boundary is this. So this is the Vindhyachal range. The Vindhyas mountains are the northern boundary of your Deccan Plateau. So Vindhya range is the correct answer, right? So a very good knowledge of the physical map of India, the physical geographical map of India is essential to solve such questions. Next is question number 2. Which of the following statements in regard to the peninsular rivers of the Indian subcontinent is true? Peninsular rivers जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, number of rivers, but these are the most important ones. Mahanadi, Godavari, Krishna, Pennar and Kaveri. Which of the following statements with regard to these rivers is true? Pehla, these flow through deep gorges and valleys. Not always. Some of them yes, but some of them not. These have perennial sources of water supply. This is not true. Perennial means continuous source of water supply. ऐसा नहीं है. इनमें से कुछ rivers के पास continuous source of water supply नहीं भी है. So this is opposed to the northern rivers. जो north में rivers बहती हैं, जो Himalayan rivers हैं, उनका ये feature है that they are perennial because they have throughout the year supply of water from the Himalayas due to melting of glaciers and due to seasonal snowfall and due to the monsoons. उसके वजह से पूरा साल उसमें पानी आता रहता है. They are perennial. So glaciers are a perennial source of those rivers, but cannot be said about the peninsular rivers. So ये गलत है, ये भी आपकी गलत statement है. Most of these are dependent on rainfall. Now this is not a generalized statement. It's saying most of these are dependent on rainfall, which is correct. ऐसा है. Meandering course is their chief characteristic. No, these rivers have least meandering because they are not coming from high mountains. They are not meandering a lot. So C, they are mostly dependent on rainfall is the correct answer, right? So these are mostly dependent on rainfall. इनके typical features क्या क्या हैं? They flow in shallow valleys. They are seasonal and not perennial. During summer there is considerable reduction in their water volume. So पूरा साल ये बहती नहीं रहती same उसमें. Their erosive activity is less and they follow in straight and linear courses due to hard rocky bed. तो ये meander ज़्यादा नहीं करती हैं, जबकि Himalayan rivers meander करती हैं. Question number 3. Which of the following is the area in the extreme south of India? अगर हम पूरे इंडिया को देखें as a physical entity, तो सबसे extreme south में क्या है? A. Cape Comorin, B. Indira Point, C. रामेश्वरम और D. पुडुचेरी. अब अगर हम इंडिया का मैप इमेजिन करें
लेट्स से दिस इज़ द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तो इसमें केप कॉमोरिन आपका ऑलमोस्ट यहाँ पर आ जाता है. इंदिरा पॉइंट इज़ इन टू द वाटर्स इन द अंडमान निकोबार आइलैंड्स. रामेश्वरम इज समवेयर ओवर हेयर अगेन, एंड पुडुचेरी इज समवेयर अबव हेयर. तो पुडुचेरी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, रामेश्वरम भी नहीं. केप कॉमोरिन इज़ द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ द मेन लैंड इंडिया. लेकिन अगर हम टिप को मेन लैंड में जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है और जो ओशियन में साउदर्न मोस्ट पॉइंट है विच इज़ द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द अंडमान निकोबार आइलैंड्स, दोनों को देखें तो इंदिरा पॉइंट इज़ इवन साउथ देन द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑन द पेनिनसुलर इंडिया. तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट. इट इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियाज़. यहाँ पे एरिया इन द एक्सट्रीम साउथ ऑफ इंडिया बोला, इन्होंने मेन लैंड इंडिया कहीं नहीं बोला. अगर मेन लैंड इंडिया बोला होता देन केप कॉमोरिन could have been the correct answer. So the answer is Indira Point. So these are the 4 extreme points of India. सबसे southern most point है इंदिरा पॉइंट जो कि निकोबार आइलैंड्स में आता है. सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है किबितू जो कि अरुणाचल प्रदेश में है. दिस इज़ द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट. दिस इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट. वेस्टर्न मोस्ट है गोहार मोती इन कच्छ विच इज़ दिस नोज टिप. और नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा कॉल इन सियाचिन ग्लेशियर. तो ये चारों आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं इंडिया के. क्वेश्चन नंबर 4, 10 degree channel is situated between. Now again a question that requires you to have a good knowledge of the physical map of India. तो अगर आपने अंडमान निकोबार आइलैंड्स का फिजिकल मैप क्लियरली देखा है देन यू वुड नो दैट देयर आर डिफरेंट चैनल्स दैट डिवाइड डिफरेंट आइलैंड रेंजेस, जैसे कि 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, देन कोको पैसेज, देन यू हैव डंकन पैसेज. तो ये सारे अलग अलग आइलैंड्स को डिवाइड करते हैं. तो 10 डिग्री चैनल किन 2 रेंजेस को डिवाइड करता है. सो दिस इज़ दैट मैप दैट यू नीड टू हैव अ गुड आइडिया अबाउट. तो 10 डिग्री चैनल आपका ये रहा जिसके ऊपर है लिटिल अंडमान और नीचे है कार निकोबार. सो अंडमान और निकोबार के बीच में, यानी कि अंडमान आइलैंड्स टू द नॉर्थ, निकोबार आइलैंड्स टू द साउथ, उसके बीच में आता है 10 डिग्री चैनल या फिर लिटिल अंडमान और कार निकोबार. तो इसका आंसर है लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार. सो सी इज योर करेक्ट आंसर. Question number 5, the Pal Ghat Gap connects Tamil Nadu. So most of the questions that I have included today are, they require the good knowledge of the physical map of India. तो Pal Ghat Gap तमिलनाडु को किस स्टेट से कनेक्ट करता है? Pal Ghat Gap है क्या? So we have Western Ghats over here. Right? Western Ghats में यहाँ पर एक Pal Ghat Gap है which is about 30 kilometers broad. तो ये गैप जो है ये तमिलनाडु को केरला से कनेक्ट करता है. इट्स लाइक कि माउंटेन्स के बीच में एक पास की तरह है, वैली की तरह है, जिससे कि एक गैप है जिससे कि ये दोनों स्टेट्स आपस में कनेक्ट होती हैं. दिस इज़ लोकेटेड बिटवीन नीलगिरी हिल्स टू द नॉर्थ एंड अनाईमलाई हिल्स टू द साउथ. तो वेस्टर्न घाट्स में नीलगिरी हिल्स नॉर्थ में है, अनाईमलाई जो है वो साउथ में है. इन दोनों के बीच में एक गैप है जिसे पाल घाट गैप कहते हैं. एंड दिस इज़ द बॉर्डर बिटवीन केरला एंड तमिलनाडु. तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केरला. पाल घाट गैप कनेक्ट्स तमिलनाडु विद केरला. इसके अलावा और भी कुछ घाट्स हैं. पाल घाट के अलावा थल घाट है, भोर घाट है, तो ये भी आपको पता होने चाहिए. क्वेश्चन नंबर 6, मैनग्रोव वेजिटेशन इन इंडिया इज मोस्ट एक्सटेंसिव वेयर? मैनग्रोव वेजिटेशन. नाउ मैनग्रोव्स आर the areas which are submerged into water, forests which are submerged into water. तो उन्हें मैनग्रोव्स कहा जाता है. एंड दीज आर सम ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रिच एरियाज इन द वर्ल्ड. तो इंडिया में मैनग्रोव वेजिटेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है तो इन सब जगहों पर है. मालाबार में भी है नियर केरला, रन ऑफ कच्छ गुजरात में भी है, सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सटेंसिव कहाँ पे मिलती है? तो दुनिया के सबसे बड़े जो मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं दे आर इन द सुंदरबंस. एंड सुंदरबंस इज योर correct answer. The mangroves of Sundarbans are the largest single block of tidal halophytic mangroves of the world. तो दुनिया के होंगे तो इंडिया के तो obviously. This forest is famous for the Royal Bengal tiger and crocodiles. Right? Next question number 7. The year of great divide in Indian demography is which? Indian demography यानी कि population की बात हो रही है, उसमें year of great divide किसे कहा जाता है? यहाँ पे डिवाइड का कोई रिलीजियस डिवाइड या पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल उससे कोई लेना देना नहीं है.
यहाँ पे ग्रेट डिवाइड का मतलब है कि जब हम इंडियन पॉपुलेशन की ग्रोथ को ट्रैक करते हैं ऑन अ ग्राफ, तो हमें पता चलता है कि वो एक ऐसा साल था जिसके बाद से हमने अपना डेथ रेट बहुत कंट्रोल कर लिया. सो ड्यू टू एडवांसमेंट्स इन साइंस एंड टेक और इम्प्रूवमेंट इन न्यूट्रिशन और इम्प्रूवमेंट इन सो मेनी फैक्टर्स वर इन्वॉल्व, जिसकी वजह से इंडिया का जो डेथ रेट था पॉपुलेशन में वो बहुत कम हो गया. और डेथ रेट कम होने की वजह से पॉपुलेशन एकदम से ग्रो की और उसके बाद से वो ग्रो करती ही जा रही है. सो इट वाज लाइक द ग्राफ वेंट डाउन एंड इट स्टार्टेड राइजिंग, और उसके बाद वो नीचे कभी गया ही नहीं. दैट लेड टू द ह्यूमंगस पॉपुलेशन दैट इंडिया हैज़ टुडे. तो वो ईयर कौन सा था? द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, जिससे पहले डेथ रेट बहुत ज़्यादा थी लेकिन उसके बाद डेथ रेट हमने काफ़ी कम कर दी. दैट वॉज, इफ यू लुक एट दिस मैप हेयर और दिस ग्राफ हेयर, सो इंडियाज़ पॉपुलेशन वॉज फेयरली फ्लक्चुएटिंग. लेकिन 1921 में वो लास्ट टाइम था जब पॉपुलेशन डिप किया, और 1921 के बाद इट हैज़ बिन इंक्रीजिंग एट अ स्टडी पेस, और आज तक वो इंक्रीज कर रही है. सो 1921 इज़ द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड when mortality started to decline leading to acceleration in the rate of growth. तो mortality कम होनी शुरू हुई और उसके बाद तो फिर growth भी बढ़नी शुरू हो गई. And that is how 1921 is a year जिसके बाद से अब तक population बढ़ी रही है. It's been more than 100 years now. Question number 8. Which of the following pairs of primitive tribes and the places of their inhabitation is not correctly matched? इनमें से कौन सी tribe को उसके एरिया से करेक्टली मैच नहीं किया गया है? ए, बक्सा ट्राइब इन पौड़ी गढ़वाल. सो बक्सा ट्राइब जो है पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में रहती है, दिस इज करेक्ट. ए, कौल ट्राइब इन जबलपुर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. मुंडा ट्राइब छोटा नागपुर की है. तो अगर हमने इंडियन हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है तो उसमें करिया मुंडा, बिरसा मुंडा वाला जो एपिसोड है, मुंडा रेबेलियन एंड बिरसा मुंडा, तो हमें पता होना चाहिए कि वो छोटा नागपुर का ही रीजन था. कोरबा ट्राइब इन कोडगू, दिस इज नॉट करेक्ट. कोरबा ट्राइब कोडगू में नहीं रहती है, इट इज़ नॉट फाउंड इन कोडगू. कोरबा ट्राइब इज़ फाउंड इन द छत्तीसगढ़ झारखंड रीजन. तो जो कोरवा पीपल हैं, दे आर कम्युनिटी दैट लिव्स इन द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ छोटा नागपुर दैट लाइज ऑन द बॉर्डर स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड झारखंड. जबकि कोडगू जो है ये कर्नाटका में है. सो कोरबा ट्राइब इज़ नॉट इन कोडगू, इट इज़ इन छोटा नागपुर. Question number 9. Which of the following states is the least densely populated? अब ये least densely populated हमें 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग ही देखना है, बिकॉज 2021 सेंसस अभी हुआ नहीं है, तो उसके बाद जो डेटा आएगा देन वी विल बी शिफ्टिंग टू दैट. तो लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट कौन सी है इनमें से? अरुणाचल, सिक्किम, झारखंड और छत्तीसगढ़. इसमें सिक्किम जो है इट इज़ द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि ओवरऑल पॉपुलेशन सिक्किम में सबसे कम है. लेकिन यहाँ पे बात डेंसिटी की हो रही है, यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रहते हैं. तो डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश. इट्स पॉपुलेशन इज़ मोर देन सिक्किम, 13 लाख पॉपुलेशन है, लेकिन इसका एरिया सिक्किम से बहुत ज़्यादा बड़ा है. सो डेंसिटी आती है सिर्फ 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर. इट्स हाईली स्पार्सली पॉपुलेटेड स्टेट, बहुत ही कम डेंसिटी है यहाँ पे लोगों की. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कि कौन सा एनिमल कौन सी सेंचुरी में है, ये कौन सा इनकरेक्ट है इसमें से? एलिफेंट सेंचुरी पेरियार केरला में है, ये सही है. टाइगर सेंचुरी, यस, मानस टाइगर रिजर्व असम में है, ये भी बिल्कुल सही है. बर्ड सेंचुरी जो है वो राजस्थान में है, भरतपुर और गाना बर्ड सेंचुरी, ये भी करेक्ट है. वाइल्ड एस सेंचुरी जो है वो बंदीपुर कर्नाटका में नहीं है. वाइल्ड एस हमें मिलता है रन ऑफ कच्छ में, रन ऑफ कच्छ. सो रन ऑफ कच्छ इज करेक्ट. तो डी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. सो डी इज योर आंसर. सो रन ऑफ कच्छ में हमें मिलता है इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी इन गुजरात स्टेट ऑफ इंडिया. इट इज स्प्रेड ओवर अप्रॉक्सीमेटली 5000 स्क्वायर किलोमीटर, established in 1972 and came under the Wildlife Protection Act of 1972. तो वैसे भी जो गुजरात है, रन ऑफ कच्छ वाला एरिया, वो वाइल्ड एस के लिए बहुत फेमस है, इंडियन वाइल्ड एस. तो वाइल्ड एस सेंचुरी भी नेचुरली वहीं पे होगी. सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस सेशन. इफ़ यू लाइक दिस वीडियोज़, प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी इससे बेनिफिट हो सके. दैट इज़ ऑल. थैंक यू एंड टेक केयर.